Hello everyone and welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss sample question paper for class 11th business administration, right? और ये sample paper जो है, it is prescribed by CBSE and it is for the session 2024-25. So let's start with the paper, question paper. तो पेपर आपका जो पैटर्न रहेगा बेटा 60 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर है, राइट? एंड आपका जो पेपर है दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन बी ए में जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. एंड आउट ऑफ टोटल 24 क्वेश्चंस, राइट, यू हैव टू अटेम्प्ट इन टोटल 70. तो आपके पास काफी चॉइस है पेपर में. सो सेक्शन ए अगेन 30 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सेक्शन ए अगेन जैसे मैंने बताया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है. क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको ओनली 4 यू हैव टू अटेम्प्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 mark. So the question number 1 is the director communicating the time of a meeting to the employee is an example of which aspect of communication skills? Informing. आपके पास 4 चॉइस दी है. तो जो डायरेक्टर कम्युनिकेटिंग द टाइम ऑफ मीटिंग, जो डायरेक्टर है वो मीटिंग का टाइम एम्प्लॉय को बता रहा है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है? ही इज इन्फॉर्मिंग. सेकंड, इन द वर्ड टीम, लेटर टी स्टैंड्स फॉर टुगेदर. थर्ड, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कनेक्ट मॉडल ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स? इट इज 10. Okay. Fourth, new, open, close, same are which command? They are file. ये सारे जो है फाइल की कमांड्स है. Fifth is price and location are two important aspects which should be considered while understanding customers needs. Spelling गलत है, it should be customers. तो प्राइस लोकेशन जो है वो important aspects है. Is it true or false? It is true. Sixth, what is sustainable development? Sustainable development का मतलब है development for future generation. Now question number 2. Out of 7 you have to attempt 5 and every question carries 1 mark. So first है आपका which of the following is treated profession? पहला है Ram is selling books on behalf of his employees. No, ये profession नहीं है. B is Riya is practicing law or doing legal practice. Yes, this is the example of profession. A cart vendor selling toys, ये भी profession नहीं है. And this is also not the answer. Part 2, system approach. ये 4 options हैं. Screen आपके सामने है, ठीक है? तो एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो को रीड करिए चारों ऑप्शन. System approach. The right answer for this is C. It encourages managers to view the organization both as a whole and as a part of the large environment. तो according to system approach, जो organization है, it is both whole as well as part of the environment. Third, third का आपका है products are the facts that supply the consumer with benefits. Nothing that production is usually separated by time and place for consumption. This definition is given by. इस क्वेश्चन में बेटा शायद आई थिंक हाँ दो आपके सी और डी ऑप्शन नहीं है, बट ये जो डेफिनेशन है आई एम जस्ट राइटिंग द नेम हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन. इट इज गिवन बाय, स्पेलिंग आप देख लीजिए, मैंजीनी. तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दी हुई है. दिस शुड हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. Fourth, members may come, members may go, but it goes on forever. So what is the appropriate word for company? Perpetual succession की बात हो रही है. Perpetual succession में members may come, members may go, but the company goes on forever. तो ये perpetual
सक्सेशन की बात है. Then which clause of Memorandum of Association explains the scope and extent of company's power? It is object clause. Object clause में जो है कंपनी की पावर, स्कोप सब बताया होता है. Then 6. What does courtesy in communication suggest? Courtesy in communication means basically being polite and sensitive to listener. इसका मतलब होता है being polite and sensitive to the listener, right? And being friendly also. Seventh, it refers to the process through which a special identification of product is established. So, identification product की कैसे establish होती है? Through branding. Let's move to question number 3. यहाँ पे 7 questions हैं जिसमें से आपको 6 attempt करने हैं and every question carries 1 mark. Which model of OB, organizational behavior, is an extension of supportive model? So, इसका आंसर है collegial model. Right? It is collegial model. So, spelling मैं इसकी दोबारा लिख देती हूँ. I think it is not, clear to you. Yeah. Second, give 2 example of non-economic activity. तो पहला example आप बोल सकते हो non-economic activity कौन सी होती है जो out of love affection की जाती है and purpose is not to earn living. So mother working at home, teacher teaching his son. तो ये दोनों non-economic activity के example हैं. Third, environment is the source of various resources. For running a business enterprise, assembles various resources called input like money, machine, etc. from its environment, including financiers, government, suppliers. Which importance of business environment is highlighted in this statement? So, इसका जो आंसर है that is it helps in tapping useful resources. तो इस स्टेटमेंट में क्या बताया है कि एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज को सप्लाई करता है, बहुत सारे इनपुट्स देता है बिजनेस को. ठीक है, तो it helps in tapping useful resources. Fourth, difference between goods and services based on physical existence. तो goods की तो physical existence होती है. Good have physical existence, right? It can be touched, but services जो है it do not have physical existence. Fifth part, he enjoys all gains and bear all losses. To which business organization is this statement related? It is sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर जो है वो सारे गेन और सारे लॉसेस, उस गेन भी वही शेयर एंजॉय करता है और लॉसेस भी उसी को सफ़र करने पड़ते हैं. देन इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 6 पार्ट अब हम कर रहे हैं. द एडवांटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज अवेलेबल. इट इज कंपनी. कंपनी में कंटिन्यूटी रहती है और काफ़ी रिसोर्सेज जो होते हैं कंपनी के पास होते हैं. 7th, rumors are spread in which type of communication? It is informal. क्वेश्चन 4, इसमें 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं एंड हेयर एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? प्रमोशन, ये भी फंक्शन है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मार्केटिंग का फंक्शन है. ट्रांसपोर्ट, ये भी है. सो द ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सेकेंड, मैक्रो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डन एट विच लेवल? सो macro organizational behavior is done at organizational level.
controlled by single individual is the best in the world if that person is so capable of managing all the affairs by himself. This statement refers to which type of business organization? It refers to sole proprietorship. Sole proprietorship. तो इसमें क्या बोला हुआ स्टेटमेंट में कि सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को अकेले हैंडल कर सकता है अगर वो कैपेबल है तो, राइट. फोर्थ, with the introduction of photostat machine in the market, carbon paper industry was adversely affected. तो which component of environment was responsible for it? यानी कि जब फोटोस्टेट मशीन मार्केट में आई तो कार्बन पेपर इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट की बात की गई. देन फिफ्थ, क्लासिफाई सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ सेलर. सो यू हैव टू classify services on the basis of seller. First is private owned organization. इधर मैं लिख देती हूँ इसी का आंसर. Private owned organization, for profit, right? And second is not for profit है. And C इसमें है public owned company. Okay. Sixth part is one person, one vote. Principle is related to which business organization? The answer is cooperative society. Question 5. Here there are 6 questions and out of that we have to attempt any 5. और हर question जो है again here it is of 1 mark. First part is following are the features of partnership. One is not. मतलब इन 4 में से ठीक है 3 जो है वो फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, एक नहीं है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप का. मोर देन 1 पर्सन, यस. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यस. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होता है. लिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज नॉट द फीचर. तो राइट आंसर इज लिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है, आपसे पूछा कौन सा फीचर नहीं है. लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेकिंग अपील और रिक्वेस्ट टू सुपीरियर कम्स अंडर अपवर्ड कम्युनिकेशन. देखो ये सुपीरियर है एंड दिस इज सबऑर्डिनेट. तो सबऑर्डिनेट अगर अपील या रिक्वेस्ट कर रहा है सुपीरियर को तो द कम्युनिकेशन विल फ्लो फ्रॉम डाउन टू अप. तो अपवर्ड कम्युनिकेशन है. थर्ड, it is that process of examining the applicants which ensures that only the most appropriate person have been appointed. तो सिलेक्शन की बात की है. रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सारे एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशंस होती है उनको हम देखते हैं, लेकिन सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है. फोर्थ, which refers to interaction of forces between group members in a social situation. The answer is group dynamics. ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स में देखते हैं कि क्या एसोसिएशन है आपस में ग्रुप मेंबर्स की. नाउ फिफ्थ इज मेंशन द नेम ऑफ दैट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड which removes hindrance of place. So it is warehouse. Now sixth, alphabet S in SWOT refers to strength. Coming to question number 6, यहाँ आपको 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं और अगेन एवरी क्वेश्चन इज ऑफ each question is of 1 mark. First part, though branding adds to the cost, it provides several advantages to the consumers. In the light of this statement, state one advantage of branding to the customers in case of homogeneous product. तो ब्रांडिंग से कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन एडवांटेजेस भी होते हैं. आपको ब्रांडिंग का एडवांटेज हाईलाइट करना है इन केस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट. ब्रांडिंग से क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी होती है, कस्टमर लॉयल्टी रिटेंशन होता है.
It encourages word of mouth, ठीक है, and it builds employees internal employee morale etc. तो आप लिख सकते हैं. Second, reducing the role of public sector and increasing the role of private sector. पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो रहा है, प्राइवेट का बढ़ रहा है, तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात की गई. द लिमिट्स ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाइड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फोर्थ, व्हाट इज बिजनेस लेटर. तो लेटर जो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो फॉर्मल लैंग्वेज में लेटर लिखती है उसी को हम बोलते हैं बिजनेस लेटर. सो लेटर written in formal language by one business organization. आप इसको पूरा लिख लीजिए, मैं लिख ही देती हूँ. वेट जस्ट अ सेकंड बेटा. One business organization to the other. Fifth part, what following are the functional area of management except one. तो तीन, इन चार में से तीन मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं लेकिन एक नहीं. प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये फंक्शन है, फाइनेंशियल भी है, मार्केटिंग भी है. डिजास्टर जो है वो नहीं है फंक्शन. तो जो फंक्शन नहीं है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो द राइट आंसर इज डिजास्टर मैनेजमेंट. मेंशन द टाइप ऑफ ग्रुप्स on the basis of size. So on the basis of size, small groups and large groups. ओके, सेक्शन बी पे आते हैं अब हम. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है. ये जो 7 to 11 है बेटा, 5 क्वेश्चंस हैं. आपको इनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. लेकिन ये 7 to 11 जो क्वेश्चंस हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, राइट. ओके, फर्स्ट इज question number 7. What does gestures as the type of non-verbal communication imply? Give any one example of correct questions. तो इसमें आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल आपको देना है. वन एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस. या सो व्हाट यू विल राइट हियर कि मूवमेंट of parts of body to express an idea or meaning, उसको हम जेस्टर बोलते हैं. जेस्टर का मतलब क्या होता है, आप कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करते हो, जैसे हाथ, हैंड्स को वेव किया, ठीक है, तो वो क्या है, वो जेस्टर, ठीक है. सो गिव एन वन एग्जांपल ऑफ करेक्ट क्वेश्चन. करेक्ट जेस्टर का होना था बेसिकली, नॉट करेक्ट क्वेश्चंस. सो दैट इज व्हाई आई वाज रीडिंग अगेन. तो करेक्ट जेस्टर का एग्जांपल है कि अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विद योर फिंगर. यू शुड नॉट पॉइंट एट पीपल विद योर फिंगर. यू शुड अवॉइड दैट. क्वेश्चन 8, डिफरेंस बिटवीन एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है, वो चीजें जो आपको अच्छी लगती है करने में. सो दे आर द थिंग्स दैट वन एंजॉयज डूइंग. एबिलिटीज क्या है, व्हाट वन डज वेल. what one does well, जो आप अच्छा करते हो, that is the ability. तो अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, that is interest, you enjoy it. but person can example ability का मैं दूं, a person can be really good in solving the maths questions. so वो ability है, जो आप अच्छी तरह काम करते हो वो ability है. जो आपको जिसको करने में enjoyment अच्छा लगता है करने में, वो आपका इंटरेस्ट है. if you find something doing makes you feel happy, so वो इंटरेस्ट होता है. लेकिन अगर आप किसी काम को बहुत अच्छी तरह करते हो, if you are very good in cooking, that is the ability. Question 9, list 2 benefit of using a word processor to write a report. तो आपको बेनिफिट्स बताने हैं वर्ड प्रोसेसर के. समथिंग एक्स्ट्रा कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द रिपोर्ट.
तो वर्ड प्रोसेसर से आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है वो कर सकते हो, रिमूव करना है वो भी कर सकते हो. You can also save the report or can also get it back whenever required. Right? Now coming to question number 10, give the meaning of service business with the help of an example. तो इसमें एग्जाम्पल है आपका any business activity that is intangible. Any activity that is intangible. और एग्जाम्पल में आप दे सकते हो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर. Now 11th, mention two roles of government for the success of promoting green economy. तो गवर्नमेंट जो है इट मेक पॉलिसीज, प्रोवाइड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, फंड्स देती है ताकि प्लान्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकें. ऑल्सो सेकेंड इज, यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट टू राइट, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिसमें से 3 करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. So 2 elements of external environment of business. तो आपको इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसमें मैंने करवाया था. एक्सटर्नल एलिमेंट्स कौन से हो जाते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के? गवर्नमेंट हो जाती है, पब्लिक है, तो एनी 2 एलिमेंट्स आप इसमें लिख सकते हैं. राइट? तो ये वाले तो आपके डायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस में, गवर्नमेंट and this what you will say customers etc. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके आ जाते हैं बाकी मतलब कि जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट. क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन दोज टाइप ऑफ कस्टमर हु रिमेन लॉयल टुवर्ड्स द ब्रांड. तो उनको हम लॉयल कस्टमर बोलते हैं. राइट? So they will remain loyal towards the brand and they will share the experience. Question 14, Shalu and Mohit bought a godown on which they invested the money equally. उन्होंने गोडाउन खरीदा और इक्वल पैसा लगाया. They rented amount equally between themselves. तो the question is, are Shalu and Mohit partners? Explain with 2 reasons. राइट? अब उन्होंने गोडाउन खरीदा और उसको पैसा भी इक्वल लगवाया और जो रेंट आ रहा था गोडाउन से वो इक्वल डिवाइड भी किया. तो क्या वो दोनों पार्टनर्स है? यस. क्यों? फर्स्ट रीजन है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया मनी इक्वली. सेकंड, उन्होंने डिवाइडेड द रिसीव्ड मनी इक्वली. जो उनको रेंट आ रहा था वो भी उन्होंने इक्वली डिवाइड किया. Question 15, why business correspondence should be simple and clear. So business correspondence should be simple in order to avoid any confusion or ambiguity. Right? It should be simple and clear in order to avoid any ambiguity. Now question 16, briefly mention the 2 types of information letter. तो 2 तरह के information letter कौन से हैं? एक तो रूटीन लेटर हो जाएगा आपका, जो बिजनेस में लिखे जाते हैं, ठीक है, एंड स्पेशल पर्पस लेटर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, आपको 2 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का है. 17th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद रेलेवेंट एग्जाम्पल. कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट बिजनेस में क्या पड़ेगा, that is very difficult to analyze.
कि किसी भी अगर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ता है, और कोई इकोनॉमिक डिसीजंस है उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ेगा, पॉलिटिकल डिसीजन होगी कोई, उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस में पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या हम उनको पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा बिजनेस में। 18th, organization is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationship among them. So, in the light of this statement, explain three advantages of an organization. तो आपको advantages बताने हैं, तो right, first है it help in the growth of enterprise. Second आप लिख सकते हो कि it ensure optimum use of human resources. And it stimulates creativity. Yeah, just a second. 19. Name the principal document submitted to the register of company for the formation of the company. So the principal document is memorandum of association. जो हम रजिस्ट्रार को, जो कंपनी जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट करती है। सो कंटेंट क्या होते हैं इसमें? नेम क्लॉज है, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, सारे कंटेंट इसमें ये वाले मेंशन होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 5 क्वेश्चंस में 3 करने हैं एंड हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन regardless of the company, nature of business, size or type of location have to perform a few strategic operations so that business process or workflow of the organization is smooth and it flows uninterrupted. Each strategic activity is highly interrelated and must be consistent with the other. Explain the major activities involved in the management of business operations. तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है, राइट। सो फर्स्ट इज एम्प्लॉय इनरिचमेंट, ये मेन आपका क्वेश्चन है। पहले आपको जो इसमें बताया हुआ है कि बिजनेस को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है ताकि काम स्मूथली हो सके, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस को करनी है? एम्प्लॉय इनरिचमेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ, और एक्सप्लेन, मैं इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही डिटेल वीडियो में कर चुकी हूँ, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट टू explain the topic thoroughly. Then market research and development. Research and development आप पूरा लिख लीजिए। Financing decisions. Right? तो ये आपको यहाँ पे explain करना है। Now question 21. There are different types of consumer goods. तो आपको इसमें बताना है, first part is one category of consumer goods required minimum shopping efforts as these are bought frequently but not in large quantity. तो the answer इसमें आपको बताना है ए का, इट इज कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड में मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स होते हैं बेटा। ओके, बी पार्ट, some goods are selected by the consumers based on suitability, style, quality, price and closely compared from the available substitutes. Okay, so the answer for this is shopping goods.
goods that the consumer does not know about but does not normally think of buying. तो ये है अनसॉर्ट गुड्स. ये गुड्स कौन से होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं. Then there is one more type of consumer good which is not mentioned above. Explain the types too. तो यहाँ स्पेशलिटी गुड्स की बात की गई है. राइट. सो देयर इज वन मोर. पहले में क्या है, कन्वीनियंस गुड है. सेकंड है कंज्यूमर जो है वो कंपेयर करते हैं सुटेबिलिटी, स्टाइल, क्वालिटी, है ना, तो शॉपिंग गुड्स हो गए. एंड देन फोर्थ वन इज जिसपे कंज्यूमर को नहीं पता है, अनसॉर्ट गुड्स. एंड द लास्ट वन जो नहीं मेंशन किया, अनदर टाइप है कंज्यूमर का, दैट इज स्पेशलिटी गुड्स. क्वेश्चन 22. Partnership is considered by some to be a relatively unpopular form of business ownership. तो चार आपको जो है लिमिटेशंस बतानी है पार्टनरशिप की. तो फर्स्ट लिमिटेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की अनलिमिटेड है. राइट. लैक ऑफ कंटिन्यूटी. एंड लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों है, पार्टनर्स जो है अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं. देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आल्सो. तो ये चीज है. क्वेश्चन 23. Human resource management include many specialized activities and duties which the human resource personnel must perform. In the light of this statement, explain 4 such functions performed by human resource manager को के जो functions हैं हमें वो बताने. तो first function is finding the number of employees which are needed in different department. तो उसको हम बोलते हैं human resource planning. कितने लोगों की ज़रूरत होगी हर डिपार्टमेंट में, वो आइडेंटिफाई करना. कंपनसेशन मैनेजमेंट कि क्या सैलरी और वेजेस रहेगी एम्प्लॉयज़ की. कंपनसेशन मैनेजमेंट. राइट. थर्ड है रिक्रूटमेंट. फोर्थ सिलेक्शन. तो रिक्रूटमेंट इधर लिख देते हैं. एंड फोर्थ इज सिलेक्शन. नाउ क्वेश्चन 24. Managers can describe how people behave in different conditions and understand why they behave differently. Also, they try to predict the future behavior of employees and control the behavior at work through team efforts, skill development, etc. तो कौन सा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाईलाइट किया. इसमें क्या बताया कि मैनेजर्स जो हैं लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों लोग अलग अलग बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशन में. तो द कॉन्सेप्ट विच इज हाईलाइटेड इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. राइट. बिहेवियर एंड एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस. तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, देन ट्रेनिंग दी मैनेजर्स, बेटर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. तो वो मैंने डिटेल वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बता एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू राइट द हेडिंग आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस में. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, second is training the managers, and third is better communication. So with this we have completed our sample paper. So stay tuned to my channel, and I will be uploading more I will be uploading more videos, and will be discussing more question papers for your reference. Thank you for watching the video.